Srinivas. Good morning, everyone. Let's have a big round of applause to attend ER. Thank you so much. To attend ERMAD Consortium, Empowering Libraries for Digital Health Transformation today. National Medical Library is a renowned name and the topmost medical library of India and medical sciences. Established in 1966 on the recommendations of Board Committee on Health Survey and Development in 1936. It is under the Administrative Control Directorate Journal of Health Services. NML occupies prominent position in the country's health information delivery system. National Medical Library's Electronic Resources in Medicine Consortium is an initiative taken by Directorate G Electronic Information Resources in the field of medicine for delivering effective healthcare. 70 state and centrally funded government institutions, including AIIMS, are selected as its members. The members are divided into level 1 and level 2 on the basis of number of end users in different institutes. There is no membership fee charged from members, and the Ministry of Health and Family Welfare had provided funds required for the purchase of electronic journals under the NML ERMAD Consortium project. 221 high-quality online e-journals are presently purchased from 5 leading publishers: British Medical Journal Publishing, Cambridge University Press, Lippincott, Williams and Wilkins, Oxford University Press, and John Beale. To run Medical Consortium, which provides digital access of academic, research, and patient care e-resources. To provide an exhaustive collection of medical and biomedical books, journal and reports, etc., including important and rare. To form a repository of health services, health science literature to provide expert training and consultation services to other medical libraries, institutions of the country. As part of creating awareness of usage of e-journals subscribed under NML ERMAD Consortium among the member institutes across the country, National Medical Library organized a one-day participate in one-day national conference. Conference is very much useful for the medical and allied health professional librarian of the country. Let's have a huge round of applause. Good morning, ladies and gentlemen. Good morning, respected Bharti Praveen Pawar ma'am, Minister of State for Health and Family Welfare. Respected DGHS sir, respected Additional DG, Jiten Prasad ji, ASFA, Zadeep Mishra sir, and our colleague, A.C. Thomas ji, Principal of Dean Racon. First of all, I would like to express my deep gratitude to the Minister ma'am, because the first time I had asked her for invitation to come to NML, she was very gracious enough to say that I want to visit NML. It has always been my dream. I wanted to check out the latest books and journals which are being taken up in NML. And just don't have the access and the money to buy these high quality journals, creating a kind of an atmosphere where we can give quality journals to all these institutions digitally. And in fact, we have taken many steps in this to how to make this a dream a reality of the Honorable HFM. And our Health Minister and our MOS ma'am is very supportive in that. Right now, our flagship program, which is the URMED Consortium, this caters to around 235, we give 235 quality journals to 70 institutions. The plan of and the vision of the ministry and the directorate, in fact, DG sir was yesterday only telling us that we should increase this
plan and scope of the availability to the last mile, and more colleges should be included in this. More medical colleges, even AIIMS also. And in fact, from this year onwards, as a milestone, we have included almost all the AIIMS, including the new AIIMS that are there. And we plan to increase it to other government. Presenting in front of you all NFL ERMAD today. अभी इस तरह का कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर अतुल गोयल जी, जितेंद्र प्रसाद जी, जयदीप मिश्रा जी, डेजी थॉमस, श्रीनिवास जी, सभी डॉक्टर्स, फैकल्टी मेंबर्स, रिसर्च स्टूडेंट्स, लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स, रिसर्च स्कॉलर्स, सभी मेरे मीडिया के साथी, सभी मान्यवर। लाइब्रेरी का महत्व क्या है हर एक जानता है। मैं जब आ रही थी हॉल में तो गोयल साहब को मैंने बोला कि लाइब्रेरी का इम्पैक्ट कितनी शांति से सब बैठे हैं। तो मैं सभी की सराहना करती हूँ कि आपने बखूबी से लाइब्रेरी को अच्छे ढंग से जाना है, फिजिकल लाइब्रेरी से। और लाइब्रेरी में हमारा एक दोस्त होता है, हर एक ने लाइब्रेरी में तो अवश्य गए होंगे ना आप सब। ऐसा कोई है लाइब्रेरी में नहीं गया है? प्लीज हाथ खड़ा करिए। कोई नहीं। तो लाइब्रेरी के महत्व तो सबको पता है। लाइब्रेरी में हमारा एक दोस्त हमारी राह देखता है। कौन है वो दोस्त? हर एक को अभी दूसरे दोस्त याद है। बुक्स, किताबें। अगर आपकी उससे दोस्ती हो गई तो वो आपका दोस्त आपको कामयाबी के और ही लेके जाए। वो ऐसा दोस्त है कि शायद शुरू में आपको थोड़ा समझेगा नहीं ये दोस्त कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लाइफ में, लेकिन ये दोस्त से एक बार दोस्ती हो गई तो समझो लाइफ से। और जिन्होंने कभी लाइब्रेरी गए नहीं, इस महानता में हमें भी तो जुड़ना है, हमें भी तो काम करना है, हमें भी तो आगे आना है। तो जिन्होंने नहीं लाइब्रेरी कभी गए उनके भी कुछ दुख मैंने पढ़े। तो देखिए मैं वो 4 लाइनों में जो मैं पढ़ के आई हूँ मैं सुना रही हूँ कि पछतावे की धुंधली सी चादर लेकर, पछतावे की धुंधली सी चादर लेकर लड़ रहा हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई, लड़ रहा हूँ जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई। जब बेरोजगारी के ताने सहा, जब बेरोजगारी के ताने सहा तो समझ आई लाइब्रेरी में जाकर मैंने क्यों नहीं की पढ़ाई, मैंने क्यों नहीं की पढ़ाई। वक्त तो निकल जाएगा लेकिन लाइब्रेरी का महत्व शायद 4 लाइनों में हम समझ पा रहे हैं, उस दिन याद आएगा। चलो आते हैं अभी डिजिटल लाइब्रेरी पे। श्रीनिवास जी ने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बात की है और आज नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी हमारी ERMAD का कंसोर्शियम में एम्पावरिंग लाइब्रेरीज फॉर डिजिटल हेल्थ। एम्पावरिंग शब्द ही हमें बहुत कुछ समझा रहा है। एम्पावर करने में बहुत सारा जुड़ा हुआ है भारत का विकास। अभी लाइब्रेरी, आपको लगेगा लाइब्रेरी एम्पावर करने से क्या फायदा है, इससे क्या होगा? इससे बहुत कुछ होगा। कोरोना ने हमें सिखाया, शायद कोरोना से पहले गोयल सर कभी हम डॉक्टर्स को वीडियो से नहीं मिले, कभी नहीं। हम अपॉइंटमेंट लेते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन कोरोना ने हमें डिजिटली
सिखा दिया जुड़ना। और डॉक्टर हॉस्पिटल से हम घर पे, और हम वीडियो कॉल से जुड़ रहे हैं, और हमें डॉक्टर भी समझ रहे हैं और हम भी डॉक्टर को समझ रहे हैं। तो दोनों को इतना अच्छा कनेक्ट कर दिया कि पेशेंट को अभी आदत भी हो गई कि नहीं, क्यों इतना दूर जाना, मिलना, वक्त भी जाया होता है, तो अच्छा है कि हम वीडियो कॉल से जुड़े। और हमारा जो टेली कंसल्टेशन का उदाहरण दिया श्रीनिवास जी ने, तो आज टेली कंसल्टेशन गांव-गांव तक पहुंच रहा है। ये हमारी उपलब्धि है जो पहले कभी देश ने देखी नहीं। आज गांव का आदमी हमारे पीएचसी में बैठा है डॉक्टर के साथ, डॉक्टर जुड़ा है दूसरे मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ, और ये यहाँ से पेशेंट को पूछ रहे हैं क्या उनके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए, और वहाँ से डॉक्टर उसके डायग्नोसिस के आधार पर क्या कर सकते हैं ट्रीटमेंट में, ये उनको सलाह दे रहे हैं। तो ये डिजिटली हम जुड़ गए हैं, इसका मतलब है। तो डिजिटली लाइब्रेरी की भी हम अगर बात करें, तो मैं पूछ रही थी कि क्या हमारे मेडिकल कॉलेज, एम्स, हमारे काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट इससे जुड़े हैं, तो बिल्कुल जुड़े हैं। और अभी हमको जोड़ने की लगातार हम उस प्रयास में हैं कि हम इससे जुड़े, और इस जोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि मैं जब जाती हूँ किसी एम्स में जाती हूँ, कभी हमारी INI में जाती हूँ, मेडिकल कॉलेज में, और पूछती हूँ कि हमारे यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस को आपने देखा है, तो बहुत सारे टाइम वो भी कंफ्यूजन में आते हैं। हम काम करते हैं लेकिन पास ही में मेरा मेडिकल कॉलेज है, दूसरे राज्य में मेरा कॉलेज है, तो उसके यहाँ बेस्ट प्रैक्टिस क्या हो रही है तो शायद हम नहीं जान पाते। वैसे ही कोई अच्छा पब्लिकेशन आया है, किसी जर्नल में छपा है, इंटरनेशनल जर्नल में छपा है, मुझे लगता है वो भी कभी कभी हम तक लेट पहुंचता है। तो ये डिजिटल लाइब्रेरी उस दिशा में लेके जा रही है कि कहीं इंटरनेशनल जर्नल ने अगर हमारा अच्छा एक प्रोजेक्ट, हमारा कोई रिसर्च छप दिया है, तो तुरंत हमें उसी दिन उसी समय हमें भी वो इस लाइब्रेरी से हम तक पहुंचे। ये जब पुराना समय था, आता था फिर मिलता था, फिर हम कॉपी लेते थे। अभी मुझे तो यहाँ इतने सारे चेहरे ऐसे लग रहे हैं कि हम सब लाइब्रेरी में जाते थे तो बड़ा बड़ा बुक लेके, फिर वो बुक भी वेटिंग में था। मुझे आज भी याद है गोयल साहब वो गाइटन का बुक, अभी कितने सारे गाइटन का नाम जानते पता नहीं, लेकिन गाइटन का बुक लाने के लिए भी हमें वहाँ पे लिख के देना पड़ता था कि मुझे ये दिन इस समय में एक शॉर्ट नोट है तो उसका गाइटन का बुक चाहिए। तो ये जमाना बड़ा बदल गया। अभी इतना अच्छा ऑप्शन आ गया कि बच्चों को ये लाइब्रेरी से आप जोड़ रहे हैं, इतनी अच्छी लाइब्रेरी से जोड़ रहे हैं कि बच्चों को अभी पढ़ने से अच्छा है कि वीडियो ही आ जाता है। हम तो पढ़ते थे कहाँ से कहाँ, कौन सी वेन जा रही है, कौन सी आर्टरी जा रही है, कौन सी मसल जा रही है, इसका ये होने के बाद क्या होगा। अभी तो बच्चों को वीडियो ही आ जाता है, स्पेसिफिक वीडियो, उस वीडियो से ही वो समझ जाते हैं। अब ज्यादा से ज्यादा मैं तो ये कहूँ श्रीनिवास जी कि मेडिकल से ज्यादा नॉन मेडिकल को ज्यादा पता चलने लगा है। तो इतनी क्रांति हो गई है कि दूसरा हमें समझा रहा है इसमें ये डिसीज में ये होता है, तो हम डॉक्टर लोगों को अभी थोड़ा और अलर्ट होके जाना पड़ता है, अपडेटेड होके जाना पड़ता है। पेशेंट आधी अधूरी भी कभी कभी लेके आता है इंफॉर्मेशन कि मुझे क्या हुआ है। तो ये है लाइब्रेरी का विशेष महत्व। और इस लाइब्रेरी से मैं यहाँ से तो है, हम जब दिल्ली बड़ी बड़ी सिटीज की बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन, लेकिन गांव तक भी पहुँचने में ये कामयाब हो रही है, इस बात की मुझे खुशी है। और हमारे ई रिसोर्सेज का लाभ सभी उठाए, ये हमारी पहल है। हम NML की पुस्तकों और जर्नल्स का भी एक मेटा डेटा हमारी NIC की क्लाउड सॉफ्टवेयर ई ग्रंथालय पर हमने अपलोड कर दिया है, और उसके माध्यम से जिसको चाहिए वो आसानी से उसे खोज पाएगा, ले पाएगा। रिसोर्सेज जैसे कि हमारी ई बुक्स है, ई जर्नल्स है, हमारे क्लिनिकल केसेस है, हाई रिजोल्यूशन के इमेजेस है। डॉक्टर्स को जो इमेज पे कुछ बातों को गौर करना पड़ता है, विशेष
विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो वो इमेजेस है, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस के माध्यम से हमारे कंसेप्ट क्लियरेंस में ज़्यादा हमें इजी होता है। कंसेप्ट क्लियर के लिए अगर एक अच्छी इमेज मिलती है तो वही हमारे दिमाग में रहती है, अच्छा ये डिसीज में ये होता है, ये डिसीज में ये होता है। तो ये अगर आप अगर गौर करेंगे तो मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखा होगा, तो उसमें डॉक्टर ने लिया कुछ हाथ में और है और डायग्नोसिस कुछ और बोला है। अब कितने लोग समझ पाएगा? बताएगा कोई क्या डायग्नोसिस था और किसकी फिल्म थी? नहीं, उसके हाथ में उन्होंने जो डायग्नोसिस किया और फिल्म किसी दूसरे इसकी थी। तो ये है, किसी को याद आ रहा है से हम कितना कंसेप्ट क्लियरेंस रखते हैं? आगे क्या बोलिए, सबको बता ही दो तो सबको याद आएगा। फिर से देखना पड़ेगा, ये मिल रहा है, इसका मतलब ये भी है। यस प्लीज, आपको बोलना है। इसी को डायग्नोसिस बोलते हैं। और ये और एक है, वो एक रेडियो इमेज दिखाते हैं और डायग्नोसिस और बोलते हैं। यस, एक्सरे का हैंड का एक्सरे होता है और डायग्नोसिस ब्रेन का बोलते हैं। तो ये होता है, तो उस टाइम हमें क्लिक भी होता है, जो मतलब मेडिको होता है उसको क्लिक होता है। कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए रेडियो इमेज हो या हमारे ई जर्नल्स के माध्यम से जो इमेजेस है उसका वैल्यू ही कुछ अलग है। इसीलिए और हम अपग्रेड कर सकते हैं। आपके इस वन डे प्रोग्राम में आपको इस माध्यम से आपकी अपेक्षा क्या है? जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम ऐसे टाइम में आज है कि हम जब 75वें मना रहे हैं, मतलब हम अमृत काल में हैं और अभी हमें 47 की विजन से काम करना है। जब हम 100 साल मनाएंगे, वो 100 साल में क्या इस डिजिटल लाइब्रेरी का क्या महत्व होगा, क्या हमें करना पड़ेगा कि उस समय के स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को, रिसर्च करने वालों को क्या मदद मिल सकती है। तो इतना अच्छा क्या आप सुझाव दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, तो दीजिए। हमें डिपार्टमेंट को, हमारी मंत्रालय को उसकी आवश्यकता भी है। और ये ऐसे नई टेक्नोलॉजी जिस पर कि हम हमारा ज्ञान, हमारा कौशल उस पर निर्भर करता है, उसे जोड़ने के लिए हमें काम करना है। हम हमारे भविष्य के लिए जब काम करने के लिए आगे आते हैं तो ये सोच के आते हैं कि नहीं मैं नहीं, लेकिन मेरा अगला जो भी आएगा उसके लिए इजी रहेगा। माता पिता जिस तरीके से सोचते हैं, क्या बोलते हैं वो कि नहीं हमने कष्ट उठाए, हमारे बच्चों को नहीं उठाए, उनको इजी मिलना चाहिए। उनकी मानसिकता यही होती है। और देखिए ऐसे कई सक्सेस स्टोरी मिलेगी कि मजदूर माता पिता, लेकिन बेटे को, बेटी को कलेक्टर बनाया है। तो ये उनकी सोच है कि मुझे जो कष्ट उठाने हैं मेरे बच्चों को नहीं उठाने, उनका और अच्छा उनको सब मिले। इसी भावना से हमें भी आगे आना है। हम नहीं तो कल जो आएंगे उनके लिए बेहतर ये सिस्टम कैसे बनेगा, उनके लिए इजी एक्सेस कैसे रहेगा, और उनके लिए क्या ये डिजिटल लाइब्रेरी इस भारत की योगदान में जरूर दिशा दर्शक होगा। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के नेतृत्व में हम डिजिटली बहुत अच्छा जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। उसका उदाहरण मैंने टेलीकंसल्टेशन का दिया, जो कि कोरोना के बाद अभी एक अच्छा टेलीकंसल्टेशन लोगों को उपलब्ध हो रहा है। एक्सपर्ट के माध्यम से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उनका पैसा भी बच रहा है, गांव के आदमी का ट्रैवल टाइम बच रहा है। तो ये हमारी उपलब्धि है जो आज साकार हो रही है। और बाकी तो मैं कहूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ ही रहे हैं। जहाँ एक हमारा एम्स था, अभी 22 एम्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, मेडिकल की सीटें MBBS हो या PG सीट्स हो, जिसकी आवश्यकता थी सालों से, लेकिन वो भी बढ़ना शुरू हो गई। और आने समय में, आते हुए समय में डिजिटली हमें सक्षम होने की, प्लेटफॉर्म का सक्षम होना हमें
नई ट्रीटमेंट के लिए, हमारे डायग्नोस्टिक मेथड्स के लिए, हमारे टेक्नोलॉजीज के लिए, ये निरंतर सीखने के लिए इसको सक्षम करना आवश्यक है। इसकी कौशलता, इसकी बेहतरीनता हमारी गुणवत्ता में वृद्धि लाती है। मुझे लगता है कि आज के इस कॉन्फ्रेंस में आप सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे मंत्रालय के लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और सक्षम सिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट का भी हमारे मंत्रालय ने शुभारंभ किया है। हम यही चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को वो इजी रूप में समझे, इसीलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में इस देश में हमने जो हेल्थ की दृष्टि से एक सक्षम ऑनलाइन प्रशिक्षण भी शुरू किया है, ये ट्रेनिंग भी शुरू किया है, ताकि बच्चों को ट्रेनिंग के माध्यम से और स्किलफुल हम बना सकें। और दूर दराज के क्षेत्रों में, जैसे ग्रामीण इलाकों में भी इस सुविधा के, इस ट्रेनिंग के माध्यम से वहाँ की सेवा बढ़े। अगर कोई ट्रेनिंग लेके जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंस उसे ग्रामीण लेवल तक की सुविधाओं काम करने के लिए बहुत ही मददगार साबित होता है। मैं अपेक्षा करती हूँ कि ये हमारी कॉन्फ्रेंस एक उसी दिशा में आगे लेके जाए, और कभी भी निरंतर सीखना एक विकल्प नहीं होता है। निरंतर सीखना विकल्प नहीं, हम हमारी जिम्मेदारी समझें, तो इस जिम्मेदारी के साथ हम ज़रूर आगे बढ़े। मुझे उम्मीद है कि सभी हमारे NML के मेडिकल प्रोफेसर्स इसमें अधिक सीखने के लिए हमें प्रेरित करेंगे, और नेशनल डिजिटल मेडिकल लाइब्रेरी मुझे अपेक्षा है इस तरीके से विकसित हो कि उसकी पहुंच ना सिर्फ नेशनल लेवल पे रहे, उसको हमें इंटरनेशनल लेवल के रूप तक ले जाना है। आज भारत एक रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, चाहे वो हमारी वैक्सीन का बनाना हो, यहाँ से बनकर वैक्सीन मैत्री के माध्यम से दूसरे देशों में देने के लिए हो, और अपने ही देश में खुद का एक रिकॉर्ड 220 करोड़ वैक्सीनेशन के टीके लगाना हो। अगर ये मेरा भारत कर सकता है तो लाइब्रेरी में भी हम इंटरनेशनल लेवल पे जरूर रिकॉर्ड करेंगे। ये अपेक्षाओं के साथ मैं सभी को फिर एक बार बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और आपके लिए हमारे मंत्रालय आदरणीय मनसुख मांडविया जी, आदरणीय प्रोफेसर बघेल जी के साथ मैं ये आपको आश्वस्त करती हूँ कि आपकी सभी जो मांगे होगी, जो इस माध्यम से आपकी अपेक्षाएं होंगी, ये करने के लिए हम कटिबद्ध हैं, हम प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। जय हिंद। Ladies and gentlemen, let's have a round of applause. Once again requesting Yeah.